Good morning, student. Welcome in your science lab class. So today we are going to start the third chapter of your science book, the animals, food and feeding habits. So let's start. Here, for making some interesting and the funny, here is use some adjective for all those animals. See, first a huge elephant. So elephant is the name of the animal and huge is the adjective for describing this huge word used for describing the size of the elephant. We all see the elephant in big in size. So a huge elephant, then a teeny weeny ant, a fierce lion. Fierce का मतलब होता है भयानक, डरावनक. टीनी वीनी मतलब छोटा सा, जो जैसे हम लोग बच्चे में बोलते हैं कि छोटा सा नन्हा सा, ऐसे ही एंट जो होता है वो बहुत ही छोटा सा एनिमल्स होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है. सो इसीलिए एंट के पहले यूज़ किया गया अ टीनी वीनी एंट, अ फियर्स लायन, अ टेम लैम्ब. टेम का मतलब जो आसानी से हम लोग की मतलब पोस मान जाते, जो हम लोग के साथ आसानी से मिल घुल जाते, उसको बोलते हैं टेम. सो जो लैम्ब है उसका जो नेचर है वो बहुत ही शांत टाइप का होता है, वो बहुत ही अच्छे से ह्यूमन बींग्स के साथ मिलजुल जाते हैं, इसीलिए कहा गया कि अ टेम लैम्ब. नेक्स्ट अ फ्रिस्की रैबिट. फ्रिस्की का मतलब क्या बोले तो चंचल, बिकॉज द नेचर ऑफ द रैबिट इज़ वेरी मच फ्रिस्की, मतलब बहुत ही वो चंचल है. ठीक है, बहुत ही एक्टिव टाइप का होता है, इधर उधर जंप करना, दौड़ना, इधर से उधर से भागना. तो रैबिट का नेचर थोड़ा सा चंचल होता है, एक्टिव होता है, इसीलिए फ्रिस्की. फ्रिस्की का मतलब एक्टिव, मोर एक्टिव. अ फर्स्ट लियोपैड. फर्स्ट का मतलब जो बहुत, लियोपैड जो है हम लोग को पता है कि तुम लोग भी डिस्कवरी में देखे होंगे, जो लियोपैड है वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं. अ फर्स्ट लेपर्ड. अ स्लो स्नेल. स्नेल का मतलब पता है ना सबको, स्नेल. स्नेल का मतलब होता है शामुक. तो शामुक, हाउ द स्नेल इज मूविंग, द स्नेल, द टॉर्टोइज, दिस ऑल animals are moving very slowly. Okay, so that's why here has used a slow snail. A colorful parrot. All of you see the parrot. The color of the parrot is green, that is very very bright color. A small delicate butterfly और a yellow jacket bee. इसका मतलब क्या है बोलो तो, जो बी होता है, हनी बी, मधुमक्खी, उसका जो ऊपर का जो आउटर कवरिंग जो है वो येलो कलर का होता है. देख के लगता है कि येलो कलर का जैकेट पहना हुआ है. दैट्स व्हाई हियर इज गिवन, हियर आई यूज द येलो जैकेट बी आर ऑल animals. Okay, so here use some more interesting adjective for different animals or insect, right? Now animals need food to survive. Not only animals, all the living organisms need food to alive or survive. हम जो भी living organism है, हम सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होता है. Okay, so why the food is need the animals? Because to grow, to get energy and to stay healthy and strong. Okay, so if the question is come, why animals need food, then what you are right, you have to write that animals need food to grow, to get energy and to stay healthy and strong. Okay, next, animals are divided into three groups from their fooding habits. So we are classified all animals into three groups according to their fooding habits. जो एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके सारे एनिमल्स को थ्री ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब थ्री क्लासेस, तीनों भागों में उसको भाग किया गया है. গ্রুপ মানে হচ্ছে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে. ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য হার্বিভোরাস.
animals that eat only plants. Okay, so all of you mark it. What are the herbivores? The animals those only eat plants are known as herbivores. जो भी एनिमल्स सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं जैसे लीफ, ग्रास, वेजिटेबल्स, इसको कहा जाता है हर्बीवोरस. नेक्स्ट, कार्निवोरस. Animals that eat flesh of the other animals. Animals that eat flesh of the other animals. Next, omnivorous. Animals that eat both plants and flesh of the other animals. जो एनिमल्स दोनों को खाते हैं, मतलब हर्बीवोरस की तरह वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और कार्निवोरस की तरह अलग एनिमल्स के फ्लेश मांस को भी खाते हैं, तो उसको कहा जाता है omnivorous. Okay, now I tell you the example of these three categories. What is the example of herbivorous? The example of herbivorous are cow, buffalo, giraffe, goat, elephant, zebra, deer, etc. And the carnivorous tiger, lion, fox, these all are wolf, and more of the except this, more others animals also come in the carnivorous animals. Next, omnivorous. Omnivorous में कौन सा आते हैं? Crow, bear, human beings, ये सारा omnivorous में आते हैं. Okay, now we are come to the next page. So first we are discuss about our first topic, that is herbivores. अब हम लोग herbivores के बारे में पढ़ेंगे. So the plant eating animals are called herbivores or herbivorous animals. All of you underline this sentence. Plant eating animals are called herbivores or herbivorous animals. Domestic animal like the sheep, cow, buffalo, goat, rabbit and horse are herbivorous animals. ये सारा जो एग्जाम्पल दिया गया ये डोमेस्टिक्स में. डोमेस्टिक हम लोग किसको कहते हैं? जो भी एनिमल्स हम लोगों के साथ घर पे रहते हैं और जिससे हम लोगों को फ़ायदा होता है, मतलब दोज एनिमल्स live with us at our home and we are getting some benefits from them. हम लोगों को बहुत सारा चीज़ मिलते हैं उस सारा एनिमल्स का, उससे बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे कि काऊ से हम लोग को क्या क्या मिलता है? काऊ से हम लोगों को मिल्क मिलते हैं. ऐसे ही गोट से भी हम लोग को मिल्क मिलते हैं और मीट, मतलब जो मटन होता है वो गोट से मिलते हैं. हेन भी डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं. हेन से अंडा मिलता है, एग्स मिलते हैं. तो जो भी एनिमल्स से हम लोगों को, जैसे सीप का जो ऊल है, जो फर है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है, उस पर बहुत सारा कामों में आते हैं. तो जो भी एनिमल्स से हम लोगों को फ़ायदा होता है, हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर द हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, सो ये यहाँ पे जो भी नाम अभी तक मैंने बताया कि जो काऊ, बफेलो, गोट, रैबिट, हॉर्स, ये सारा डोमेस्टिक हर्बीवोरस एनिमल्स है. ओके, नाउ वी गिव देम ग्रास, हे एंड द अदर प्लांट प्रोडक्ट्स टू ईट. ये सारे एनिमल्स को हम लोग खाने में क्या क्या देते हैं? ग्रास, हे का मतलब बच्चे दो जो खौर होता है ना, उसके जो डस्ट होता है, तूस होता है, उसको बोलते हैं हे, खौर का. और जो अदर प्लांट प्रोडक्ट मतलब फ्रूट या तो वेजिटेबल्स, ये सारे हम लोग खाने में देते हैं. एंड wild animals like deer, zebra, rhinoceros, giraffe, kangaroo, elephant and hippopotamus are also herbivorous animals. पहले जो मैंने नाम बताया, before we are mention those names, they are the example of the domestic herbivorous animals, but now we are mention this name, they are in the wild herbivorous animals, they are live in the forest. ओके, तो ये सारे जो एनिमल्स मैंने अभी बताया, जैसे कि एलिफेंट, जेब्रा, राइनोसरस, डियर, हिपोपोटामस, ये सारे जंगल में रहते, फॉरेस्ट में रहते वाइल्ड एनिमल्स है. और इसमें वाइल्ड एनिमल्स में रहने की वजह से भी ये हर्बीवोरस होता है. ठीक है. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
इन सर्च ऑफ फूड। ये सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते रहते हैं जंगल में भी अपने खाने की खोज में। ओके, नाउ ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प front teeth to bite and cut the grass plant. Okay, so all of you underline this sentence. All plant eating animals मतलब जो भी herbivores animals है, plant eating herbivorous animals को दूसरा नाम plant eating animals भी होता है, ठीक है। तो plant eating animals have sharp front teeth to bite and chew the grass plant. They also have flat, broad, strong teeth at the back to chew it food. So all the herbivorous animals have two types of teeth. In the front they have sharp front for the biting the food and cut the grass plants. जो भी होता है herbivorous animals, इसके पास दो तरह का टीथ होता है। सामने का जो टीथ होता है वो फ्रंट का जो होता है वो ब्रॉड होता है, शार्प होता है। उसकी टीथ के हेल्प से हार्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, कोई भी ब्रांचेस को, मतलब पेड़ की जो डाल होता है, जो भी ग्रास होता है, लीफ होता है, उसको गाछ से, पेड़ से तोड़ के वो उसको काटते हैं। लेकिन जो पीछे वाला टीथ है जो कि फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा प्लेन होता है, फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसी के हेल्प से वो सारे खाने को च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग तो सबको पता है क्या होता है, चिबाना। च्यूइंग मतलब अच्छे से उसको चिबा के खाना। So the herbivorous animals have a two type of teeth, okay, and these two type of teeth doing the different type of function for eating their food. Next, the carnivorous. Next is carnivorous. So flesh eating animal. So the other name of the carnivorous animals is the flesh eating animals. Carnivorous animals का और एक नाम क्या है, flesh eating animals are called carnivores or carnivorous animals. All of you underline this. Flesh eating animals are called carnivores and carnivorous animal. Now the example, the lion, the tiger, snake, eagle, wolf, fox are some animals that eat the flesh of the other animals. They are also called predators. Predators का मतलब शिकारी, hunter. Predators का मतलब क्या होता है, प्रीडेटर्स का मतलब है जो दूसरे को शिकार करके खाते हैं। सो ये सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स का नाम मैंने अभी बताया, जस्ट नाउ वी हैव मेंशन दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स नेम, दे ऑल आर प्रीडेटर्स, okay, because they all catch the other small animals and then eat their flesh. Okay, now carnivores have sharp, carved and pointed teeth to tear the flesh of their prey. जो भी पकड़ते हैं, जो भी शिकार को पकड़ते हैं उसको बोलते क्या, प्रे, ठीक है। जो भी किसी छोटे छोटे एनिमल्स को, कार्निवरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रे। सो ये कार्निवरस एनिमल्स के कैसे टाइप का टीथ होता है, कार्निवरस हैव शार्प, कर्व्ड and pointed teeth to tear the flesh of their prey. Okay, underline this. Carnivores have sharp, curved and pointed teeth to tear the flesh of their prey, and the strong grinding teeth at the back of their mouth help them to chew it the food. Then the carnivorous animals also have two types of teeth. In the front they have a sharp, curved and pointed teeth for catch their prey and then tear the flesh of this prey. पहले उसको पकड़ते हैं पकड़ने के लिए, और फिर पकड़ने के बाद उसको फाड़ने के लिए, मतलब दांतों की हेल्प से, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड कर्व टीथ होता है उसकी हेल्प से उसको वो फाड़ते, छोटे छोटे पीसेस में कटते हैं। देन विथ द हेल्प ऑफ देयर बैक टीथ, जैस जो बैक टीथ होता है, जो पीछे वाला टीथ है, वो थोड़ा सा ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग का मतलब तुम लोग तो सुनी होगी, ऑल ऑफ यू लिसन, द ग्राइंडिंग मशीन, दिस मशीन ऑल्सो अवेलेबल इन आवर होम। जो ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मसला को एक साथ पूरा पेस्ट करते हैं।
तो ग्राइंडिंग का मतलब कोई भी चीज़ को मतलब डस्ट में मतलब उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में उसको मिक्स करने। सो जो कार्निवोरस एनिमल्स की पीछे वाला टीथ होता है उसको कहा जाता है ग्राइंडिंग टीथ, बिकॉज हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ टीथ दिस एनिमल च्यू द फूड प्रॉपरली। वो इसी टीथ की हेल्प से अपने खाने को अच्छे से च्यूइंग कर सकते हैं। नाउ some carnivorous animals like the tiger, fox, lion, leopard and wolf chase their prey and kill them. chase का मतलब दौड़ना, run after, किसी के पीछे में दौड़ना, चेस करना। चेस का मतलब क्या होता है बेटा? चेस का मतलब होता है चिल्ड्रन पीछे में दौड़ना। So this all animals, lion, tiger, fox, they all are carnivorous animals, and when they want to catch the other animals, they chase their prey. Prey का मतलब होता है शिकार, जिसको वो पकड़ने चाहते हैं उसी को बोलते हैं prey, and kill them. They ran first and kill their prey with the powerful paws. Paws का मतलब होता है पंजा। पॉज का मतलब क्या होता है? पंजा। जो उन लोगों की जो पैर की जो पंजा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो पहले वो दौड़ते, जो भी एनिमल्स को पकड़ने चाहते उसके पीछे दौड़ते तेज़ी से, फिर उसको अपने पंजे से कस के पकड़ते हैं। एंड प्रे इज़ द एनिमल हंटेड फॉर द फूड बाय द कार्निवोरस। प्रे इज़ द एनिमल, प्रे किसको कहा जाता है? प्रे एक एनिमल्स होता है जिसको शिकार करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स अपने खाने के लिए। ओके, so what is the prey? All of you mark it. What is the prey? Is the animal hunted for food, जो खाने के लिए जिसको शिकार किया जाता है। कौन करता है? कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द omnivores. So herbivores eat only plants and carnivores eat only flesh, but the animals that eat both plants and flesh of the animals are called omnivores. Okay, so we all know from this chapter the herbivorous animals eat only plants and the carnivorous animals eat only flesh of the other animals. But so many animals have their only not only eat the plant product or not only eat the flesh, they eat both. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि दोनों को खाने में खाते हैं। ओके, सो मार्केट एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores or omnivorous animals. Now here is given some example like bear, crow, cat and dogs and also human beings. All of us also come in this categories, omnivorous categories. Okay, because we all eat the plant product as well as the animal product. Okay, now the next topic is the food chain. This is very important topic. All animals depend directly or indirectly on the plant for their food. What is the meaning of the directly and the indirectly? इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें कहा गया है कि जो सारे एनिमल्स से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल रहते खाने के लिए। कैसे? देखो, क्योंकि जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है वो तो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, जैसे काऊ, गोट, बफेलो, ये सारा क्या खाते हैं? डियर, एलिफेंट, ये सारे प्लांट को ग्रास, लीफ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मतलब प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है और जो कार्निवोरस एनिमल्स कभी भी डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाते हैं, लेकिन उसको खाने में क्या चाहिए? हर्बीवोरस एनिमल्स। तो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, और हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं रहेगा तो कार्निवोरस एनिमल्स को भी अपना खाना नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट ऑल द एनिमल्स हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर और कार्निवोरस इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर। तो मतलब प्लांट नहीं रहेगा तो सबको खाने में प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ कार्निवोरस ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल. सो इफ there were no plants, then how the animals will survive? And so carnivores also depend indirectly on plants for their food. In nature it is called food chain. ये जो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहते हैं इसी को कहते हैं फूड चेन। जैसे खाने के लिए प्लांट के ऊपर herbivores animals डिपेंडेबल है, और here see the given the picture.
This is the picture of the food chain. First the grass, then the grass eaten by the herbivorous animal deer, and again the deer eaten by the lion. So if there is no grass, so that means the deer cannot live for many days, and if deer is not live, so then carnivorous animals also cannot survive without food. So that means herbivorous animals depend directly on the plants, and carnivorous animals indirectly depend on the grass. Okay, this is direct and this is indirect. So this is direct and this is indirect. Okay, so in this way all animals depend each other for their fooding habits. Okay, now next, feeding habits of animals. Now we are discuss about the feeding habits of the animals. How do elephant use their trunk to get food? See the picture. Elephants use their trunk for getting the food. Elephant use their long trunks to break branches and leaves from the trees and put them into their mouth. तो एलिफेंट क्या करते हैं, अपने जो ट्रंक है, जो ये वाला ट्रंक है, इसी के हेल्प से कोई भी पेड़ से ब्रांचेस को, लीव्स को तोड़ते हैं, फिर उसको अपने मुंह में डालते हैं. They also use their trunk to drink water. Okay, so if the question is come, how do elephants use their trunk to get food, then you have to write from here then up to here. Okay, next, what do a huge elephant and a tiny butterfly have in common? तो यहाँ पे क्वेश्चन है दे एलिफेंट और बटरफ्लाई में ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ है. Elephant use their trunk to suck water and butterfly suck the nectar of the flowers with the special mouth part, the thin long tube. They use the tube to suck nectar from the flowers. तो कॉमन क्या है दोनों में, क्योंकि जो एलिफेंट की जो है ट्रंक, उसको क्या कहते हैं, सूंड. तो एलिफेंट अपनी सूंड की हेल्प से वाटर को भी सकिंग करते हैं, सक करते वाटर को पीते हैं. ऐसे ही बटरफ्लाई की मुंह के सामने भी एक लंबा सा पतला सा एक ट्यूब के जैसे चीज़ रहते हैं, माउथ ऑर्गन, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस. उसी के हेल्प से एलिफेंट की तरह बटरफ्लाई भी फ्लावर से जो नेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, नेक्टर के मतलब होता है स्वीट जूस, जो कि फ्लावर में रहते हैं. हर फ्लावर में अंदर एक मीठा सा रस रहते हैं, उसको बटरफ्लाई अपने मुंह के सामने जो पतला सा लंबा सा ट्यूब जैसे रहते हैं उसके वो सक करते हैं, उसको वो चूसते हैं. ओके, तो यही कॉमन है दोनों में, एलिफेंट और बटरफ्लाई में. ओके, नाउ काउज एंड बफेलोज कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि काउ और बफेलो अपने खाने को कैसे खाते हैं. सो काउज एंड बफेलोज कट एंड bite the grasses. Cows and buffaloes cut and bite the grasses, leaves and plants with their sharp front teeth. पहले cows और buffaloes क्या करते हैं, cows और buffaloes पहले cows और buffaloes पहले क्या करते हैं, जो भी खाना चाहते हैं उसको पहले तोड़ते हैं, बाइट करते हैं अपने मुंह के with the help of the sharp front teeth. पहले ही मैंने बताया कि जो काउज और बफेलोज के सामने का दांत होता है वो बहुत ही शार्प होता है फ्रंट का, ठीक है. उसकी हेल्प से पहले वो कोई भी पत्ते को, घास को पहले तोड़ के खाते हैं एंड स्वॉलो, फिर उसको च्यूइंग नहीं करते. दैट टाइम दे आर नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, दे ओनली कट द बाइट एंड देन स्वॉलो इट, उसको गिल लेते. स्वॉलो का मतलब होता है गिल लेना, मतलब च्यूइंग नहीं करते वो. ओके, लेटर बाद में इन द डे दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड च्यू ऑन इट फॉर आवर्स. बाद में क्या करते हैं, जब वो एनिमल्स रेस्ट करते हैं, बैठ के रेस्ट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, फिर से वापस वो सारे खाने को मुंह में लेके आते हैं. ओके, तो देखो क्या बोलने बताया, पहले जो भी बाफेलोज, काउस, ये सारे एनिमल्स होता है, इस पहले क्या करते हैं, वो जो भी लीफ होता है, ग्रास होता है, जो भी खाना खाते हैं उसको पहले
तोड़ते हैं, बाइट करते हैं और उसको डायरेक्टली स्वालो कर लेते हैं, मतलब गिन लेते हैं, उसमें च्यूइंग नहीं करते। फिर जब बाद में व्हेन आफ्टर सम टाइम व्हेन दे टेकिंग रेस्ट, जब वो रेस्ट करते, विश्राम करते, तो वापस वो सारे खाने को मुंह में लेके आते। दे ब्रिंग बैक द फूड into their mouth and that time they chew it properly with the help of their back flat and broad teeth, पीछे वाला टीथ की हेल्प से। तब वो वापस जब बैठ के रेस्ट करते तो उस खाने को वापस लेके आते और देन इट च्यू इट प्रॉपरली, उसको अच्छे से च्यूइंग करते। ये जो प्रोसेस है इसका एक नाम है, ये सारे एनिमल्स नहीं करते, कुछ कुछ एनिमल्स में ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं च्यूइंग द कड। क्या बोलते हैं? च्यूइंग द कड। ओके, दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग द कड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द च्यूइंग द कड? द च्यूइंग द कड इज द प्रोसेस। ओके, हैव यू एवर वॉच्ड द रैबिट एंड स्क्विरल ईटिंग? तो जो काऊ, बफेलो, ये कौन सा फीडिंग हैबिट्स को फॉलो करते हैं? च्यूइंग द हैबिट। ओके, एलिफेंट क्या करते हैं? अपनी ट्रंक की हेल्प से खाने को खाते हैं। जो बटरफ्लाई होता है, हनी भी होता है, मस्क्यूटो, ये कैसे खाने को खाते हैं? सकिंग करके, मतलब चूस के। अब हम लोग पढ़ेंगे रैबिट्स और स्क्विरल के बारे में। रैबिट एंड स्क्विरल ईट हार्ड फूड। रैबिट और स्क्विरल थोड़ा सा हार्ड फूड खाते हैं, मतलब नट, पल्सेस, ये सारा कुछ खाते हैं, सच एज कैरेट, गुआवर्स, सीड्स एंड नट। They nibble at their food, breaking it into tiny pieces before chewing them. ठीक है? They nibble का मतलब होता है ये सारा खाने को लेते हैं। They nibble at their food. They nibble their food, breaking it into tiny pieces. पहले इसी खाने को, ये सारे जो एनिमल्स मैंने बताया, स्क्विरल्स, रैबिट, ये खाने को पहले छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। ब्रेकिंग इट इंटू टाइनी पीसेस। टाइनी पीसेस का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा करना, छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। बिफोर च्यूइंग देम, उसको पहले च्यूइंग करने से पहले वो हार्ड जो फूड खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। देन बिफोर च्यूइंग इट, देन इट च्यू प्रॉपरली। दिस इज कॉल्ड ग्नैविंग द फूड। मतलब रैबिट और स्क्विरल का जो खाने का प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? ग्नैविंग द फूड। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दिस ऑल्सो। च्यूइंग द कार्ड, ग्नैविंग द फूड, ये फूड प्रोसेस है। नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल्स ईट विदाउट टीथ? अभी तो हम लोग पहले अभी तक क्या पढ़े कि अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग टीथ का टाइप होता है और उसी के हिसाब से वो खाना खाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स में टीथ प्रेजेंट ही नहीं है वो कैसे खाना खाएंगे? स्नैक्स एंड फ्रॉग्स हैव नो टीथ टू च्यू देयर फूड, सो देन हाउ दे ईट फूड? स्नैक और फ्रॉग के पास कोई टीथ नहीं है, तो वो एनिमल्स कैसे खाना खाएंगे? सी, दिस एनिमल्स swallow their food as a whole. swallow मतलब ये सारा एनिमल्स क्या करते हैं? खाने को डायरेक्टली गिन लेते हैं, गिनना। These animals swallow their food as a whole मतलब पूरा एक साथ खाने को गिन लेते हैं। Snakes swallow their food whole. They can even swallow eggs और small animals. ओके, तो जो स्नैक है वो क्या करते हैं? जो भी एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को, इंसेक्ट को खाने जाते हैं उसको पूरे बॉडी को एक साथ मुंह में ले लेते हैं। दे कैन इवन swallow eggs और स्मॉल एनिमल्स। फ्रॉग, लिजर्ड एंड कैमेलियंस हैव अ स्टिकी टंग। तो फ्रॉग, लिजर्ड, ये जो होता है इसके जो टंग होता है, इसका तो टीथ नहीं होता, दे हैव नो टीथ बट देयर टंग इज़ वेरी मच स्टिकी। ये सारे एनिमल्स के जो टंग होता है वो बहुत ही आठा टाइप का होता है, उसमें चैट टाइप का होता है, स्टिकी होता है। सो व्हेन दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे, व्हेन दे सी एन इंसेक्ट देन क्विकली डर्ट देयर टंग। तो क्या करते हैं ये लोग? कैसे खाने को पकड़ते? दे सिट स्टिल, वो चुपचाप बैठे रहते, खाने की वेट करते, और जब भी उसको कुछ भी देखने को मिलते कि कोई भी इंसेक्ट जो खाने की लायक है उसमें क्या करते? वो जल्दी करके अपने मुंह से अपने टंग को निकाल देते, उस इंसेक्ट के ऊपर गिरा देते हैं। ठीक है, दे ओपन एंड क्विकली डर्ट देयर टंग आउट। द इंसेक्ट गेट्स स्टक टू देयर टंग।
because their tongue is very much sticky, so when that time they are dart out their tongue on the insect are stuck into their tongue. तो उस टाइम में वो इंसेक्ट क्या होता है, अपने उस टंग के ऊपर स्टिक हो जाते हैं. देन दे रोल बैक टू द टंग एंड swallow देयर prey. फिर क्या करते हैं, वो वापस मुंह में अपने टंग को घुसा लेते हैं और फिर वो खाने को गिन लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज protection and care of animals. Okay, so we all should be careful with the all animals, and we should protect all animals. Protection and care of animals. There are different kinds of animals in our world. Wild animals live in forest, while some are domestic animals live with us. We should protect these animals and take care of them. जो भी है वाइल्ड एनिमल्स, जो भी पेट एनिमल्स होते हैं उसका तो हम लोग देखभाल करते ही है, क्योंकि हम लोग उसको घर में पालते हैं, अपने जैसे बच्चे जैसे रखते हैं, अपने फ्रेंड की तरह उसके साथ बिहेव करते हैं. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको भी हम लोग को प्रोटेक्ट करना होगा. सो फर्स्ट वी आर लर्न हाउ वी आर केयर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. क्या हम लोग वाइल्ड एनिमल्स की केयर कैसे कर सकते हैं. We should love and care the wild animals living in the forest. We should not destroy forest by cutting trees. We must not hunt them. Some of the animals are endangered species. Endangered का मतलब होता है जो अवलुप्त होने वाला है, जो ख़त्म होने वाला है, जिसका स्पीसीज. जैसे पहले हम लोग को पता है कि डायनासोर था. पहले बहुत साल पहले हम लोग की अर्थ पे डायनासोर नाम के एक एनिमल्स रहा करता था. लेकिन धीरे धीरे एनिमल्स एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट डायनासोर्स को चाहिए वो एनवायरनमेंट ख़त्म हो गए. अभी वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए उसका जो स्पीसीज़ है वो पूरा ख़त्म हो गया. ऐसे बहुत सारा और भी एनिमल्स है जिसको स्पीसीज़ ख़त्म होने वाला है. तो इस सारे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब जिसका स्पीसीज़ अब बहुत ही लिमिटेड हो गया है. सो हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए. हम लोगों को बिना वजह गाछ को नहीं काटना चाहिए. फॉरेस्ट हम लोगों को अभी बहुत सारा लोग की ये शौक़ रहते कि हम लोग शिकार पे जाएंगे, एनिमल्स को मारेंगे अपने फ़न के लिए, अपने मस्ती के लिए. लेकिन ये सब पूरा बंद करना होगा. देयर नंबर्स डिक्रीजिंग रैपिडली, बिकॉज बहुत सारा वाइल्ड एनिमल्स है जिसका नंबर रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा है. डिक्रीज़ मतलब कम होते जा रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. दे हेल्प अस इन मेनी वेज. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम, गिव देम होलसम फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक. जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो लोग, उसको तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं घर में, तो उसके लिए उसका देखभाल बहुत अच्छे से करना होगा. उसको रोज़ अच्छे से खाना देना होगा. जहाँ पे भी हम लोग खाना देते हैं, पानी देते, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए. उसका जो केज या तो जो भी हाउस पे वो रहते हैं उसको रोज़ क्लीन करना चाहिए. अगर कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उसको मेडिसिन देना होता है. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन. व्हेन दे फॉल सिक वी शुड विजिट द डॉक्टर. We should not throw colored water in Holi or burst firecrackers in Diwali on animals. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने मस्ती के लिए, अपनी खुशी के लिए होली के टाइम पे क्या करते हैं, किसी को नहीं मिल रहा है तो एनिमल्स, डॉग के ऊपर, कैट के ऊपर होली दे देते, रंग दे देते हैं. जब भी दिवाली होता है या तो महालया होता है तो फायर क्रैकर्स ये सारे उन एनिमल्स के सामने जाके फोड़ते हैं. तो इसमें क्या होता है, उन एनिमल्स की, वो तो बोल नहीं सकते ना वो एनिमल्स, लेकिन उसको वो बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है. हो सकता है कि फायर क्रैकर्स के आग से उसकी बॉडी में कुछ जल जाए, उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. इसीलिए ये सब में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट एनी एक्टिविटीज़ विद दिस इन फ्रंट ऑफ दिस एनिमल्स दैट दे आर हार्मफुल और इंज्योर्ड देयर हेल्थ. उसकी हेल्थ की कोई भी इंज्योर हो, ऐसे कुछ भी काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए. ओके. नाउ दे आर नॉट फॉर फन. वो सारे हम लोगों की सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होता है.
दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, दे हैव अ फैमिलीज टू। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते, ऐसे उन लोगों को भी ये हक है कि वो भी ठीक से कंफर्टेबली अर्थ में रह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो भी एनिमल्स हो, कि पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, उस सब के साथ हम लोगों को फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। वी शुड लाइक अ फ्रेंडली बिहेवियर with all animals. Okay, so I hope this video are enjoy to all of you, and this help to all of you for understand this chapter properly. Okay, so all of you learn the chapter again and again. Thank you students, have a good day. Bye bye, take care yourself.